Hello students, again in continuation to the molecular orbital theory, what we discussed with you yesterday, if you can remember, I told you according to molecular orbital theory, every atomic orbital of the combining atom of comparable energy will merge and they will form molecular orbital of two different level. One molecular orbital of lower energy called bonding molecular orbital and the another of higher energy called anti-bonding molecular orbital. Right? अब इसी के continuation में I am just moving forward. I am just discussing with more examples with you and I will definitely tell few more examples and some new concepts. हम एक एग्जाम जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम आपसे एक मॉलिक्यूल की और बात करते हैं एंड मींस फिर बोल रहा हूं आई एम जस्ट टॉकिंग विद यू अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और मैं आपको इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उसके एनर्जी लेवल डायग्राम्स की बात कर रहा हूं. मेक इट वेरी क्लियर. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल विद यू एंड लेट आई टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. ध्यान से सुनना और समझना. I am just talking about formation of the oxygen molecule according to on the basis of molecular orbital theory. जब आपने O2 molecule की बात करनी है तो you must be aware about the electronic configuration of oxygen. आपने बोला सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फ़िगरेशन बैठेगा 1s2 2s2 and 2p4 मींस दो ऑक्सीजन एटम और दोनों की यही सिचुएशन रहेगी 1s2 2s2 2p4. अब क्या बताया था मैंने आपको? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है ओनली दोज ऑर्बिटल्स विल मर्ज व्हिच हैव कंपेरेबल एनर्जी. एंड व्हेन आई से कंपेरेबल एनर्जी व्हाट डज इट मीन? 1s will mix with 1s, 2s will mix with 2s and 2p will intermix with 2p. तो जहां तक सवाल है as far as in this energy level diagram, as far as we talk about intermixing of 1s and 1s, we discussed in detail yesterday. When 2s orbital mix, they form two new orbitals. कैसे मिक्स होंगे वो? कल बताया था मैंने आपको. Yes, they will intermix head on, sigma, और दो बनेंगे sigma bonding and sigma anti bonding. 1s we can represent here. आप लिखेंगे सर this is 1s orbital, this is another 1s orbital. They intermix and when they intermix it results in the formation of sigma 1s and sigma star 1s. This is 1s 2 electron. Now in this sigma 1s what we will find? Total 4 electrons are there. 2 goes to sigma 1s, 2 goes to sigma star 1s. Sigma star 1s किसको रिप्रेजेंट करेगा? बॉन्डिंग को, एंटी बॉन्डिंग को? यस, गुड. इट रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग क्योंकि इसका एनर्जी हायर है. नाउ नेक्स्ट इज देयर 2s, one 2s orbital and this is another 2s orbital. They both intermix and when they intermix it results in the formation of, as usual, sigma 2s and sigma star 2s. Same 2s 2 electron, 2s 2 electron. Total 4 electron. 2 goes to sigma 2s and 2 goes to sigma star 2s. This is how the electron distribution takes place. अब now the important point. अब ध्यान से सुनना. मेरे पास these are two oxygen atoms. This is one oxygen atom. This is one oxygen atom, and these are the p orbitals. And I can remember जब हमने p orbitals की आपसे बात की थी, डिटेल किया था अभी, जब बॉन्डिंग की बात चल रही थी, जब मैं आपको सिग्मा और पाई बॉन्डिंग बता रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि जो तीन ऑर्बिटल होते हैं, one is called px, other is py, and third is pz. Same here. This is what we find? Three orbitals. One is called px, py, pz.
Situation 4 electrons, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. This is the electronic configuration of atomic orbitals. अब जब atomic orbitals आपके पास merge होंगे, you see the situation, you just observe the situation. ये आपके पास p orbital, I am sure मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियस अगर आप मानते हो तो ये जो pz ऑर्बिटल होता है, दिस इज pz ऑर्बिटल जो अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? दिस इज px, दिस इज px. They are considered perpendicular to internuclear axis. Similarly, this is py and this is py. They are also perpendicular to the internuclear axis. Am I clear? Right? Situation. What is the situation? Now what do we find? Now अब बिल्कुल क्लियर है, ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होने जा रहे हैं. तो कौन हेड ऑन होगा? pz हेड ऑन, px साइडवाइज, py sideways. pz head on, px sideways, py also sideways. सिचुएशन क्या बनेगा? दो pz हेड ऑन, तो pz जब हेड ऑन होंगे तो उससे सिग्मा ऑर्बिटल्स बनेंगे. देख लो, आप खुद देखो सिचुएशन क्या बनेगी. आप बोलेंगे सर दिस इज सिग्मा pz, आप बोलेंगे सिग्मा टू pz. इसका बॉन्डिंग बना, एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेगा. आप बोलेंगे सर दिस इज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा स्टार टू pz. अब px दो px साइडवाइज, py दो py साइडवाइज. कुल कितने हो गए जो साइडवाइज हो रहे हैं? दो px दो py, टोटल 4 पाई ऑर्बिटल्स बनाएंगे. लेकिन 4 पाई में दो बॉन्डिंग बनेंगे और दो एंटी बॉन्डिंग बनेंगे. और मजे की बात, क्योंकि px py दोनों पाई बनाएंगे तो दोनों के बॉन्डिंग पाई भी सेम एनर्जी लेवल पर होगा, दोनों का एंटी बॉन्डिंग भी सेम एनर्जी लेवल पर होगा. मींस हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिखेंगे सर दिस इज पाई टू px, दिस इज पाई टू py, and this will be anti bonding. हम बोलेंगे it is pi star to px, this is pi star to py. ये लेवल बनता है, this is called energy level diagram for p orbitals. I think everybody is getting sure. Now अब मैंने क्या बोला? ये atomic orbitals merge हो गए, atomic orbitals merge हो गए. atomic orbitals के merge होने के बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे 3p, total 6 orbitals merged, and when they merge total new 6 orbitals are formed. और जब नए 6 orbitals आपके पास बने, सिचुएशन क्या बनेगी? अब भूल जाओ इलेक्ट्रॉन किस में था, आप इस लेवल में इनको फिलअप करना शुरू करोगे. कैसे करोगे? लोअर मोस्ट, मैंने बोला था आउबाउ-उनसुल पॉलिस प्रिंसिपल. लोअर मोस्ट सबसे पहले दो इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे. और ध्यान रखना 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है. फिर पहले, क्योंकि दोनों का सेम एनर्जी लेवल है, पहले दोनों में एक इलेक्ट्रॉन डलेगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन और डलेगा. टोटल आउट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन 6 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. 2 आर लेफ्ट. One will go to pi star to px, other will go to pi star to py. This is how the distribution of electron takes place, how the distribution of electron takes place in oxygen, how oxygen molecule is formed, how the molecular energy level diagram for O2 can be made. अभी मैं इसमें आपसे और भी बात करूंगा, उससे पहले एक एग्जांपल और. चलिए एक लग गया, एक बात और बता दूं मैं आपको. आपने इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है. अब एक शॉर्टकट बता दें. देखो 1s 2s फिल्ड में आप अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो जो सबसे लास्ट वाला सेक्शन है इसको भी देख सकते हैं. अब इस लास्ट वाले सेक्शन में देखें तो कल कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, आपको क्या बोला था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2. आपने चेक किया, आपने कहा सर बॉन्डिंग फॉरगेट इट, क्योंकि ये बैलेंस हो गए, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग इक्वल, फॉरगेट इट। यहां आ जाओ, यहां बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 2 4 2 6, 6 are electrons in bonding molecular orbital and 2 are in anti-bonding molecular orbital divided by 2, 4 by 2, 2. You will see bond order is 2. Right? अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आपने बॉन्ड ऑर्डर 2 फाइंड किया, एक और बता देता हूं मैं आपको, इस मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम को देख करके आप चेक करो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या। तो आपने कहा है सर, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड मींस दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। यहां नहीं देखना, अब हमारा इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे बात है। आपने बोला सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जब आपने कहा सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेंबर इससे मॉलिक्यूल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी डिसाइड होती है, और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी, आपने कहा 2 अनपेयर्ड, आप बोलेंगे सर दिस मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक कैरेक्टर को शो करेगा। व्हाई? बिकॉज ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। रिमेंबर, अगर सभी पेयर्ड होंगे तो मॉलिक्यूल अपने आप में डायमैग्नेटिक कहलाएगा, ये पैरामैग्नेटिक। आई होप यू गॉट वन मोर पॉइंट टुडे कि आप इलेक्ट्रॉन्स को देख करके एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं देखना, आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखना है। एक छोटा सा एग्जांपल और हम आपसे लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। दिस इज नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। मेरे ख्याल अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप टाइम भी नहीं लगाओगे यहां पर, आप बड़े आराम से यू आर गेटिंग कि सर इट्स वेरी सिंपल, 1s 1s, दिस इज 1s ऑर्बिटल। ये जो हम ऐसे शो करते हैं, एनर्जी को शो कर रहे हैं, यहां एनर्जी इंक्रीज हुई। दिस इज 1s ऑर्बिटल सर, ये 1s 1s, सेम क्या बनेगा आपके पास? व्हाट यू विल फाइंड? इट्स वेरी सिंपल। आप बोलेंगे सर हमको मिलेगा सिग्मा 1s, हमको मिलेगा सिग्मा स्टार 1s। इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन सर, इस 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। सेम विद 2s आल्सो। मैं जानबूझ के सारा बता रहा हूं जिससे आपको अच्छे से याद रहे। 2s, दिस इज अनदर 2s। सिचुएशन क्या बनेगी? यू विल कॉल इट एज सिग्मा 2s, you will call it as sigma star 2s। सेम 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2s में है और 2 इलेक्ट्रॉन यहां 2s में, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। एंड when again we have 4 electrons, what we will find? You will place 2 electron in sigma 2s and you will place 2 electron in sigma star 2s। exactly same जा रहा है, कुछ भी फर्क नहीं है। अब आती है बात p ऑर्बिटल्स। Now this we have to talk about p orbitals. Now this we have to discuss about p orbitals. These are 3 p orbitals. These are again 3 p orbitals we have. Remember, this is px, this is py, this is pz. This is px, this is py, this is pz. Now when they will combine together, situation क्या बनेगी आपके पास? यहां 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन। नाउ दे विल इंटरमिक्स। क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल pz will intermix, and when pz will intermix, क्या बनेगा आपके पास? सिग्मा 2pz बताया था। दूसरा कौन सा बनेगा? सिग्मा स्टार 2pz। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। px py 2 ऑर्बिटल लिए, 2 ऑर्बिटल लिए, टोटल 4, 2 बनेंगे पाई। दिस इज पाई 2px, दिस इज पाई 2py। I repeat it, I just make it again. This is what you will say. You will say, sir, this is pi 2px, this is pi 2py। और ये बनेगा आपके पास कौन सा? आप बोलेंगे सर दिस इज पाई स्टार 2px
and this is pi star 2py. अब सुनिए, एग्जैक्टली सेम आ गया ना आपके पास, बट यहां एक थोड़ा सा फर्क आता है, और यहां जब आप बात करते हैं थोड़ा सा एक फर्क आता है। क्या डिफरेंस आता है? यहां डिफरेंस ये आता है, ये ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी लेवल को चेंज करते हैं। इसका एक रीजन है, वी विल डिस्कस, बट हमने बोला ये दो ऑर्बिटल्स अपने एनर्जी लेवल को चेंज करेंगे। नोट करने से पहले इसको देख लीजिएगा, और आप इसका मतलब क्या होगा इस कंडीशन में, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई लोअर एनर्जी, सिग्मा टू पी जेड हायर एनर्जी। बॉन्डिंग है बट इट एक्वायर्स हायर एनर्जी। रिमेंबर, इसका रीजन होता है इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का। जब छोटे साइज के एटम्स होते हैं तो हम मानते हैं 2s और 2p में एनर्जी गैप ज्यादा हो जाता है, इससे सिग्मा टू पी जेड लोअर एनर्जी ले लेता है। नाइट्रोजन में उतना छोटा साइज नहीं होता, 2s और 2p क्लोज होते हैं, इसलिए 2p ऑर्बिटल सिग्मा टू पी जेड ऑर्बिटल हायर एनर्जी लेवल को एक्वायर करता है। इसको ध्यान रखना। और पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई लोअर एनर्जी को एक्वायर करेगा। इसको दोबारा फिर सुनना जो मैं आपको बोल रहा हूं। अब सिचुएशन क्या बनेगी, फर्क नोटिस कर लीजिए, और मैं आपसे बता दूं, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। आपने नाइट्रोजन में कुल 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने थे, तो जिन मॉलिक्यूल्स में आपको 14 इलेक्ट्रॉन सब डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, मैक्सिमम 14, 12 भी रह सकता है, 10 भी रह सकता है, मैक्सिमम 14, तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, आपने इस एनर्जी लेवल डायग्राम को दिमाग में रखना है। और अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन 16, 18, 20, तो आपने इस एनर्जी लेवल को दिमाग में रखना है, इसको मत भूलिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट डू वी फाइंड, आपने कुल मिलाकर के 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था। Now when we have to distribute 3 electrons, listen carefully, 6 electrons को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, and when you want to distribute 6 electrons, आपने क्या किया, 1 2 3 4 हो गया। एंटी बॉन्डिंग खाली छूटे जाने दो, इट्स नॉट योर ड्यूटी, और 2 इलेक्ट्रॉन आपने सिग्मा 2pz में करा दिए। हमें क्लियर, एंटी बॉन्डिंग खाली है, जाने दीजिए। आपने फिर से ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल डायग्राम। बस अब आपने क्या करना था, आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको फार्मूला मालूम है, व्हाई टू टेक मच टाइम, बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। मैंने क्या बोला, 1s में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर छोड़ दो, 2s में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग बराबर छोड़ दो, सब इस पे आ गया। ले इसको काउंट करो, इसमें बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6 6 माइनस कितने एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2 3, बॉन्ड ऑर्डर कम्स टू बी 3, सो इट्स बॉन्ड ऑर्डर, आई रीराइट इट अगेन, बॉन्ड ऑर्डर कम्स टू बी 3। दूसरी बात, क्या इसमें कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखो यहां मत देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी देखो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप बोलेंगे व्हेन यू विल से नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप बहुत आराम से बोलेंगे कि सर दिस मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, दिस इज नॉन मैग्नेटिक, नो मैग्नेटिक कैरेक्टर, व्हाई, बिकॉज ऑफ नो unpaired electrons. So this is another case, 2 examples of molecular orbital theory I discussed with you. बस ये ध्यान रखना, जिन एलिमेंट्स में जो N2 से नीचे हैं, जिनका एटॉमिक नंबर टोटल इलेक्ट्रॉन 14 से कम बैठता है, आप इस एनर्जी लेवल को दिमाग में बैठा लीजिए, और जिनका इस एनर्जी लेवल को दिमाग में रखिए, ये आपने फॉलो करना है। और जिनका इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो जाए, ये देखो मिलाकर के 16, आपने इस एनर्जी लेवल को दिमाग में रखना है। अब ये जो मैंने आपको एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए, अब मैं कल और ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखेंगे, मैं उसकी आपसे बात करूंगा। थैंक यू।